So namaskar dosto, my name is Saibal Gupta and you are watching your favorite channel, that is TVB India. So by the thumbnail obviously you will understand that I am gonna discuss about the most affordable SUV from Audi, and that is Audi Q3. ओके सो नाउ इस गाड़ी का अगर मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, सो 2012 में एक्चुअली लॉन्च हुई Audi Q3, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम से शुरू होता है एक एसयूवी का क्रेज इंडिया में। अभी तो लोग अब एसयूवी ही ले रहा है ऑब्वियसली, तो उस टाइम में वो उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। बट ऑब्वियसली एसयूवी की जो एक यूटिलिटी है और एसयूवी की जो एक चाहत है और एसयूवी की एक जो प्लस पॉइंट्स है, दैट टाइम इंडियंस ऑलरेडी न्यू अबाउट इट और रियलाइज अबाउट इट। BMW X1 ऑलरेडी अवेलेबल था मार्केट में, सो ऑडी ने बहती गंगा में हाथ धोने के लिए लॉन्च किया Audi Q3। ओके वो हुआ था 2012 में, एंड नाउ टुडे इज 2025, 13 years long. So it's a 13 years of journey of having this car by Audi or making this car by Audi. So obviously in this 13 years वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बिकॉज इस टाइम में बैटरी कार आ गया है। इवन यू विल गेट सो मेनी टेक्नोलॉजीज ओके इन दिस टाइम राइट नाउ। एंड अगर मैं बात करूंगा इस गाड़ी का जो प्राइस है वो है लगभग 55 to 60 लाख, ओके, विच इज नॉट एट ऑल स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. But I'm gonna tell you that whether is it really feasible to pay this amount of money for this car, because however when this car was launched at that point of time it was completely tech loaded, okay, but how it is right now, or is it really feasible to buy this car in this particular era or not, that I will gonna discuss in this video. 50 से लेके 60 तक ये जो प्राइस ब्रैकेट है वो बहुत ज्यादा एक्चुअली बड़ी है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम मल्टीपल कंपनी फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। Q3 का एक्चुअली अगर कंपटीशन में है तो जर्मन में अगर बात बोलूंगा तो मैं आपको मिलता है BMW X1, और अगर मर्सिडीज का बात करूंगा तो मर्सिडीज GLA, वॉल्वो में आपको मिलेगा वॉल्वो XC40। बट इसका जो बिग कंपटीशन एक्चुअली मार्केट में अगर है और किया जाता है तो इट वाज विद टोयोटा फॉर्च्यूनर, क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर भी आती है सेम प्राइस ब्रैकेट में। हालांकि इट इज नॉट द लग्जरी कार, और जो हम लोग एक जर्मन को बोलते हैं, that kind of feature you will not get in Toyota. That was completely debatable matter. However, I have already driven Toyota Fortuner as well, GLA, and as well as BMW X1. As I have said that all these cars are coming under 50 to 60 lakh, in between this price bracket. But one thing which is absolutely free for you, and that is this subscribe button. So please वो जो रेड कलर का जो बटन है उसको प्लीज जोर से दबा दीजिए, और हाँ एक बार ही दबाना प्लीज, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन so that you will get the earliest notification, so that if I'll upload any video in future you will be notified. So that's all about it. So please enjoy the cinematic shot of this beautiful car, and of course I'm gonna tell you the driving experience of this particular car, and I'm gonna tell you the last of this video that whether you should buy this car in 2025 or not. Through the darkest, when the sky is getting bright, I'll hold you, I'll never let you go. When you fall, I'll be closer, I'll be closer. Hello everyone. So as per the thumbnail and the introduction video, you get to know that I'm driving the Audi Q3. Normally मैं बोलता हूँ all new, but इस टाइम में मैं नहीं बोल सकता because this car was launched back in 2012. Okay, so this is Audi's most affordable SUV in India and worldwide probably. So start करते हैं इस गाड़ी के प्राइस के साथ. So this car's price starts from 45 lakh and goes till 56 lakh. And the version which I'm driving, it is Q3 technology.
which is coming under approx actually 55 lakh. So most importantly Audi ने इंडिया पे कोई डीजल कार नहीं बनाती है, so hence all the variant what you will get it in petrol. So looking at the price and ये price पे मिला हुआ गाड़ी के competition में still is it worth to buy or not, that I will gonna discuss in this particular video. क्योंकि इस price bracket बहुत ज़्यादा competitive है and how different this car than other cars that I will gonna discuss. And to be very honest with you, आपको अगर इस गाड़ी का exact price figure जानना है, so please I will suggest you to go to the nearest Audi dealer so that you can get a proper price bracket, okay, or proper price. So start करते हैं इस गाड़ी के पावर फिगर के साथ. So this car is having 2 liter of petrol engine, having 4 cylinder with 7 speed DCT gearbox, which is generating 187.74 bhp of maximum power at 4200 to 6000 rpm and 320 newton meter of maximum torque at 1500 to 4100 rpm. So the version which I am driving, it is all wheel drive. आपको ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव वाली ऑप्शन भी मिल जाएंगे, बट ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस रहेगा एंड ऑब्वियसली इट इज चीपर देन दिस वेरिएंट व्हिच आई एम ड्राइविंग राइट नाउ. सो हालांकि बाकी जर्मन राइवल गाड़ियों पे सिर्फ मर्सिडीज GLA पे AWD ऑप्शन मिलता है और BMW X1 पे AWD ऑप्शन मिला करता था, बट अभी फिलहाल ये बंद है. एंड मर्सिडीज बेंज GLA में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है एंड वो भी डीजल वेरिएंट में. पेट्रोल में अगर ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन वाला आप गाड़ी एक चाहते हो तो ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द Audi. सो ऑडी ने इस वेरिएंट को बोलता है और इस टेक्नोलॉजी को बोलता है क्वाटो टेक्नोलॉजी. सो जिसका बैजिंग आपको दिख जाएगा इस गाड़ी में. सो नाउ बात करते हैं इस गाड़ी के पावर एंड परफॉर्मेंस की. सो Audi Q3 हैज़ अ टॉप स्पीड ऑफ 212 km/h एंड 0 to 100 km/h ये स्पीड अचीव करती है इन जस्ट 7.3 सेकेंड में. सो जो पावर फिगर आप पेन एंड पेपर में देख रहे हो, सो इन रियलिटी इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. सो देखिए, नॉर्मल रास्तों पे अगर आप उतना पावर आपको ये गाड़ी दे देती है जिससे आप आराम से ओवरटेक वगैरह कर सकते हो. एंड ऑल्सो टू सपोर्ट दैट दिस कार हैज़ 4 ड्राइविंग मोड्स: एफिशिएंसी, कंफर्ट, auto and dynamic. So dynamic is for sporty mode or sports mode. However, इस पे आपको instant pickup तो मिल जाएगा, but somehow you need to compromise with the mileage. और एफिशिएंसी के बारे में तो मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है. ऑब्वियसली यू विल ऑलरेडी गेट टू नो दैट एफिशिएंसी होता है वो जिसमें आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा. ऑब्वियसली आपको वहाँ पर थोड़ा सा पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. बट मुझे ये कंफर्ट एंड ऑटो मोड, मुझे ज़्यादा उसका बीच का जो डिफरेंस है मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया. और मे बी आई एम नॉट दैट मच एजुकेट टू टेल यू अबाउट द डिफरेंस इन बिटवीन ऑटो मोड एंड कंफर्ट मोड. सो दोज हु आर हैविंग Audi Q3, please explain me in this comment section so that it will be easier for others as well before if they will buy this car. सो दोनों मोड पे गाड़ी का जो स्टीयरिंग मोड है मुझे थोड़ा सा लाइटर ही लगा अगर मैं बात करूँगा कंफर्ट एंड ऑटो मोड में. हाँ, मुझे मोटा मोटा तौर पे ये लगा कि इस गाड़ी में आपको पेट्रोल का जो आपको जो एफिशिएंसी है वो ठीक ठाक दे रहा था एंड पावर भी लीनियर पावर डिलीवरी आपको दे रहा था, उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है. बट ओवरऑल में अगर मैं बात करूँगा तो इस गाड़ी में आपको मिलता है एक बैलेंस्ड सा पिकअप जो ज़्यादा स्लो भी नहीं है और ज़्यादा फास्ट भी नहीं है. सो जो आपको एक डिसेंट ड्राइविंग क्वालिटी प्रोवाइड करती है. सो अकॉर्डिंग टू मी द पावर डिलीवरी इन GLA एंड X1 से तो मुझे लगता है Q3 बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो X1 वॉज ग्रेट अमंग दीज ट्रायो, बट टाइम के साथ साथ BMW ने अपना इंजन से वो जो पावर जो निकाल दिया टू गेट अ बेटर माइलेज, तो समहाउ मुझे लगता है कि उस गाड़ी को चलाने में वो मज़ा नहीं है जो अभी एक Q3 में है. सो इन एवरी एस्पेक्ट्स आई पर्सनली फील दैट अगर आप पेट्रोल के साथ जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली Audi Q3 इज़ बेस्ट अमंग दिस ट्रायो. बट हाँ, अगर आप डीजल ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो तो मैं बोलूँगा Mercedes GLA के साथ जाना, बिकॉज it is having insane power in Mercedes GLA. But as I have said, पेट्रोल में मैं obviously Q3 को ही सजेस्ट करूँगा.
मैं यहाँ पर बाकी इंडियन और कोरियन और जापानीज़ ब्रांड को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एज जो लोग जर्मन कार लेते हैं या लेना चाहते हैं वो एक्चुअली इस ब्रांड के गाड़ियों को साइडलाइन कर ही देते हैं। हालांकि आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर बैड, बस ये है कि दे डू नॉट वांट टू गो विद दिस कार्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेक्स। सो दे आर एक्सेलेंट। सो यूजुअली लग्जरी ब्रांड का कोई भी गाड़ी आप उठा लो, स्पेशली जर्मन प्लेयर्स का, तो दे डू हैव अ वेरी नाइस ब्रेकिंग सिस्टम। सो दे आर वेरी हार्ड। अगर आप एक हार्ड एक्सेलरेशन के बाद अगर आप डायरेक्टली ब्रेक दबाते हो, सो इट वर्क्स एब्सोल्युटली फिनोमिनली। एंड अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो दे आर ग्रेट। एक अच्छा खासा बैलेंस्ड सा है। सो दे आर नॉट लाइक एज स्टिफ एज BMW X1 और दे आर नॉट एज कम्फी एज Mercedes Benz GLA। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से आप आराम से इस गाड़ी से निकल जाती है। एंड बड़ा पॉट होल हुआ या स्पीड ब्रेकर हुआ तो थोड़ा सा आपको झटका दे सकती है, बट स्टिल अगर आप नॉर्मल रास्तों से अगर जाना चाहते हो पॉट होल वगैरह तो आराम से ग्लाइड करते हुए निकल जाती है। बट हाँ, ऊबड़ खाबड़ रास्ता हुआ या ऐसे टाइप के रास्ते के लिए तो मुझे लगता है लैंड रोवर रेंज रोवर से ज़्यादा अच्छा गाड़ी तो है ही नहीं। नाउ राइड क्वालिटी पे मुझे लगता है कि ऑब्वियसली टायर इज़ ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल ओवर हियर। एंड आपको मिलता है ऑडी के तरफ से 18 इंच अलॉय व्हील्स, बट अलॉय का जो डिज़ाइन है ना, इट इज़ वेरी बोरिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। सो ऑडी रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड ओवरऑल अगर मैं बात बोलूँगा तो ऑब्वियसली टायर के साथ तो ऑडी को थोड़ा सा ज़्यादा सोचना चाहिए, ऑब्वियसली टायर स्पेशली द अलॉय का डिज़ाइन के मामले में। सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द डिज़ाइन पार्ट, सो ऑब्वियसली ऑडी ने बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किया है इस गाड़ी के ऊपर। जहाँ GLA एंड X1 में ड्रास्टिक चेंज हुआ है टाइम के साथ साथ, ऑडी अपने Q3 पे ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है। God knows why. So वही पुराना आपको मिल जाएगा, सेम शेप एंड साइज, बट एक्सटर्नली हेडलाइट पैटर्न और टेल लाइट पैटर्न और सामने में जो रेडिएटर ग्रिल का जो पैटर्न, पैनोरामिक सनरूफ का एक एडिशन, ये सब में मोटा मोटा तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 2012 के बाद से इस गाड़ी पे सिर्फ फेसलिफ्ट ही हुआ है। बट 2023 में लॉन्च हुई इस गाड़ी का कूपे वेरिएंट एंड विच इज़ कॉल्ड एज Q3 स्पोर्ट्सबैक। एंड आई पर्सनली फील इट इज़ अ ग्रेट मूव बाय ऑडी। हालांकि इट डिपेंड्स ऑन योर ओन टेस्ट। अगर आपको एक स्पोर्टी फील वाला गाड़ी चाहिए सो यू शुड गो विद द ऑडी Q3 स्पोर्ट्सबैक। अगर आपको एक नॉर्मल कन्वेंशनल SUV चाहिए फॉर फैमिली टाइप एंड ऑल दैट, सो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड गो विद द ऑडी Q3 normal wala actually, which I am driving right now. So Audi kept the same simple minimalistic design throughout the years, and Audi ka rule simple hai, if it is not braking don't make any changes. But size के मामले में अगर मैं बोलूँ तो this car is approx 4.5 millimeter, उससे थोड़ा सा कम ही होगा। And actually it is longer than GLA but smaller than BMW X1। बट ऐसा नहीं है कि लगभग 19-25 का डिफरेंस है, बट इट इज़ लाइक 19-20-21 का ही फ़र्क होगा। एंड इट गोज़ फॉर द सेम फॉर द व्हील बेस एज वेल। तीनों गाड़ियों में का जो व्हील बेस है वही 19-20-21 वाला ही डिफरेंस है। बट मुझे लगता है इन माई ओपिनियन BMW looks much more greater, fresher and up market out of this trio। एंड अगर मैं Mercedes GLA का बात करूँगा तो वो थोड़ा सा मुझे हैचबैक से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगता है, मतलब वैसा वाला हिसाब किताब है। और Audi Q3 ने बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किया है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल ओकेजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर। सो Audi Q3 का जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू GLA एंड X1। Audi Q3 का पीछे आपको मिल जाता है अच्छा खासा लेग स्पेस एंड हेडरूम भी आपको मिल जाता है एडिक्वेट। हाँ, अगर आप एक अच्छी बात है कि आप पीछे वाला सीट को आप थोड़ा सा लाइक स्लाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन हाइट। हाँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, थाई सपोर्ट भी मुझे अच्छा खासा लगा इस गाड़ी का, उतना ज़्यादा मैं कंप्लेन नहीं कर पाऊँगा। बट द स्पॉन्ज मटेरियल एंड द लेदर मटेरियल इज़ ग्रेट। सो पीछे आपको मिल जाएगा अच्छा खासा एक AC यूनिट एंड एवरीथिंग पुट्स टुगेदर दिस कार इज़ ग्रेट फॉर बैक सीट पैसेंजर्स। सो पीछे आपको मिलता है 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड सो
if you are a person who prefers to sit in a back seat and actually who prefers to be driven, to be very honest, so this is the best place to be in. And मोटा मोटा तौर पे अगर मैं बोलूँगा तो इस गाड़ी का जो पीछे में मिलता है आपको सनरूफ, जो पैनोरामिक सनरूफ एंड एज वेल एज द बड़ा जो विंडो, इससे आपको एक रूमी सा फील होता है, सो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा. नाउ कमिंग टू द फ्रंट सीट्स, जस्ट लाइक द रियर सीट्स, front seats are also simple and minimalistic. So if I'll compare with the BMW X1 and Mercedes-Benz GLA, इन दोनों गाड़ियों पे आपको मिलता है स्कूप्ड आउट सीट्स जो दिखने में भी बहुत ज़्यादा फ्रेश लगती है, एंड इट इज़ गिविंग यू अ स्पोर्टी फील वाइल ड्राइविंग, एंड इट होल्ड यू सो गुड दैट इट विल नॉट the body will not even move while taking the U-turn or cornering. आपको इस गाड़ी पे कोई वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलता है, एंड ऑफ कोर्स आपको मेमोरी फंक्शन तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो. हाँ, बट आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाती है फॉर दिस टू कार, आई मीन फॉर दिस टू सीट्स, लाइक फॉर ड्राइवर सीट एंड द को ड्राइवर सीट. आपको यही मिल जाती है, यही बहुत बड़ी बात है. बट Q3 का जो सीट्स आर वेरी बेसिक, मतलब हाँ ऑब्वियसली दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑफ कोर्स फॉर द लॉन्ग जर्नी, बट आपको अगर ये लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील देगा, हाँ नहीं, आपको ये चीज़ नहीं देने वाला है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश इंटीरियर विच विल ब्लो योर माइंड, देन सॉरी, Audi Q3 is having very boring interior. इवन इस गाड़ी पे आपको हार्ड प्लास्टिक यूज़ होती है ऑल ओवर द डैशबोर्ड एंड द डोर्स. हाँ, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है. ऑब्वियसली यू आर पेइंग लाइक अप्रॉक्स 50 to 60 लाख फॉर दिस कार, सो ऑब्वियसली प्लास्टिक का जो क्वालिटी है वो तो हार्ड होना ही है, एंड सॉरी अच्छा होना ही है ऑफ कोर्स. बट इंटीरियर मामले के अगर मैं बात बोलूँगा तो ऑब्वियसली BMW X1 इज़ फार बेटर दैन दिस duo, like from Audi Q3 and Mercedes-Benz GLA. एंड इस गाड़ी पे आपको मिलता है 10.10 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले विच इज़ हैविंग वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले. एंड बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है एक डिजिटल स्पीडो कंसोल, एंड वेयर यू विल गेट ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन वाइल ड्राइविंग. इवन यू कैन स्विच द मैप टू स्पीडो कंसोल फॉर ईजी नेविगेशन. सो ये मुझे लगता है एक नाइस अप्रोच है. एंड सीट पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट, वट आई हैव सेड ऑलरेडी. एंड अनफॉर्चुनेटली आपको कोई भी एक्चुअली इस दोनों सीट पे वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, विच ईजीली यू विल गेट इट इन Mercedes-Benz GLA एंड BMW X1. सो नाउ डिज़ाइन के मामले में तो बहुत ज़्यादा बात हो गई, एवन राइड क्वालिटी के बारे में भी बात हो गई. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन नाउअडेज, एंड दैट इज़ द सेफ्टी ऑफ दिस कार. सो दिस कार इज़ हैविंग एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट, rear camera, the entire pressure monitoring system, 6 airbags, and you will get also electronic power braking system, but you will not get any auto hold functionality, which is surprising, right? But however, you will get 5-star in this particular car as per the global NCAP. और अगर मैं बात बोलूँगा तो it misses out on not only that auto hold functionality, even it misses out on 360-degree camera, blind spot detection, and of course आपको इस गाड़ी में कोई ADAS भी नहीं मिलता है, जहाँ पर इसका राइवल कार जैसे Mercedes-Benz GLA हुआ या BMW X1 पे आपको आराम से एक्चुअली ADAS मिल जाता है. वो छोड़ो, लगभग इससे आधे प्राइस में मिला हुआ गाड़ी पे भी आपको मिल जाता है ADAS. एटलीस्ट लेवल 1 लेवल 2 ADAS तो मिल ही जाता है. हालांकि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग Audi is still struggling after Dieselgate scam in 2015. So those who don't know, Audi comes under same Volkswagen group. So जो भी हो, what you will get in this car you will not get in other rival cars, and what you will get in other rival cars you will not get in this particular car. हालांकि what you will not get, इसका जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है. So that's how it is. तो आपको टेक्नोलॉजी के मामले में वो सारे चीज़ तो नहीं मिलने वाला है जो अदर कार कंपनी और कार मेकर्स आर गिविंग इट टू यू वेरी इजीली.
बट हाँ, ऑडी का बात है तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ बैलेंस्ड राइड, एंड ऑफ कोर्स आपको वो सारे एक नॉर्मल जो एक गाड़ी में मिलता है सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे ABS हुआ, EBD हुआ, एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग हुआ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हुआ, ये सब जो चीज़ है जो डेली मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होती है, वो सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। बट मुझे लगता है कि कोई भी लोग जो एक्चुअली कोई गाड़ी लेता है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और एक तो मुझे लगता है ये सारे चीज़ ज़रूरत है इस गाड़ी में, बिकॉज ऑब्वियसली ऑडी यू आर मेकिंग एन SUV, एंड नॉर्मली SUV सिर्फ इंटरसिटी ड्राइविंग के लिए नहीं होता है, आप इस गाड़ी को बाहर भी लेके जा सकते हो। सो मुझे लगता है कि हाँ, ऑडी को दे देना चाहिए था, एटलीस्ट अडास लेवल 2 तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता है कि क्यों ऑडी ने ये चीज़ नहीं किया। बट हालांकि गाड़ी का ओवरऑल अगर मैं क्वालिटी का बात करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा, सी whatever Audi is giving in this price bracket, चाहे आप प्लास्टिक क्वालिटी का ले लो, चाहे आप म्यूज़िक सिस्टम का बात बोल लो, चाहे आप इंफोटेनमेंट डिस्प्ले को अगर बोल दो, तो मोटा मोटा तौर पे आपको बहुत ज़्यादा इसका क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखा गया है। एंड नॉट ओनली दैट, आपको जो सामने मिल जाता है एक वायरलेस चार्जिंग फैसिलिटी, फॉर दैट यू वुड हैव दैट वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन। सो मोटा मोटा तौर पे अगर मैं बात बोलूँगा तो Audi Q3 इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दोज हु आर लुकिंग फॉर अ कार विद अ सिंपल डिज़ाइन। कोई आपको सेंसर वगैरह का मतलब झमेला नहीं चाहिए, आपको एक डेली टू डेली रूटीन में गाड़ी को खींचना है, तो मुझे लगता है Audi Q3 इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार अमंग ऑफ दिस। Now the important question what every Indian asks. कितना देती है? So as per Audi, this car is giving approx 12 to 14 kilometer of mileage in liter of petrol, but right now I'm getting 9 to 10 kilometer per hour. Sorry, 9 to 10 kilometer per liter of mileage from this car. So looking at the power delivery, looking at the petrol, I personally feel कि हाँ, इतना तो माइलेज ठीक ही ठाक ही है, बट मुझे लगता है कि Audi को थोड़ा सा ज़्यादा ही माइलेज दे देना चाहिए था। हाँ, हालांकि मैंने गाड़ी भी बहुत मतलब रफली चलाया है कभी कभार। आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स मोड ऑल्सो, बट येस दैट्स हाउ इट इज़। अरे यार, कैसे ये बस चला रही है। ओके, सो हाँ, अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूँगा, जो एक्चुअली बस से ही आ रहा है, सो हाँ, गाड़ी का एक्चुअली विजिबिलिटी इनसाइड द कार बहुत ही अच्छा है, अच्छा खासा। एक्चुअली इसका जो शेप एंड साइज़ जो है, इसके चलते आपको अच्छा खासा विजिबिलिटी मिल जाती है थ्रू आउट ORVM एंड IRVM। एंड टू द मिडिल पैसेंजर हेडरेस्ट जो साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, सो इट इज़ रियली ईजी फॉर मी टू सी द बैक, but the glass portion of this particular car actually छोटा है as compared to other cars, and sports back तो और भी छोटा है, but still I'm getting a decent view from this car। 360 डिग्री अगर कैमरा हो जाता तो एक्चुअली आई एम मिसिंग आउट दिस 360 डिग्री कैमरा यार। हम लोग कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है ना nowadays। So that's all, मोटा मोटा तौर पे एक राइडिंग रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। So now let's go back to home and I'm gonna tell you that whether you should buy this car in 2015 or not, or who can actually buy this car. Now my final verdict about this car, that whether you should buy this car in 2025 or not, और actually obviously आज के डेट में अगर कोई भी गाड़ी लेना चाहता है, so that would be like for long term investment। okay, so अगर आप ये गाड़ी लेते हो, so is it really feasible to pay 55 to 60 lakh for this car? So first of all, I need to tell you that this is one of the affordable SUV from Audi। okay, तो अगर आप जाना चाहते हो एक पेट्रोल कार में विद एक्चुअली ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन, तो आपको इस रेंज में आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलने वाला है। पेट्रोल गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन आपको शायद ही कोई
ब्रांड ऑफर करती है। अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन चाहते हो तो आपको इधर आपको डीजल में स्विच करना पड़ेगा, और अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा रियर व्हील ड्राइव एंड फ्रंट व्हील ड्राइव रिस्पेक्टिवली। This is one thing what I personally feel that it is the one of the key factor for Audi. Now the second thing which I personally like about this particular car, that the design language, it is simple and minimalistic. हाँ, इसका बहुत ज़्यादा drastic changes तो नहीं आया throughout the years wherever BMW X1 and Mercedes GLA ने बहुत ज़्यादा चेंजेस किया है, बट Audi का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा अप मार्केट फ्रेश डिज़ाइन आपको नहीं मिलने वाला है। दोज हु आर लुकिंग फॉर अ जर्मन कार बट सोबर, और आपको चाहिए एक लग्जरी वाला फील, but you do not want to pay an extra amount of money, so definitely I should suggest you to go with the Audi Q3. But now I am telling you some emotional part as well. See, till date buying a car in India is a big investment after purchasing a house. Okay, so those who are switching from a normal like Korean हुआ या Indian brand हुआ या Japanese brand हुआ to German, and that to a luxury brand, okay, like Audi. Obviously Audi is a big brand like in India, right? Because obviously we are not staying in US or UK or any other countries. Okay, so obviously आपको इंडिया में Audi को या Mercedes को या एक्चुअली BMW को एक लग्जरी गाड़ी के तौर पे देखा जाता है। तो those who are actually trying to switch to German cars and that to a luxury German cars, obviously Audi Q3 is a best option for you. अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूंगा तो obviously Audi Q3 is no way actually as a value for money product. Obviously इसका maintenance भी बहुत ज़्यादा high है. Obviously you are paying of course a higher amount of money, having no feature as well. So that's how it is. So monetary way में अगर मैं बोलूँगा तो you can go with the second hand Audi Q3, but obviously आपको देखना चाहिए कि उसका जो condition है कैसा है and all that. But if you're really looking for a fresh first hand car, then मुझे लगता है कि Audi Q3 is not the feasible option or feasible car to buy. Okay, looking at the price bracket and the options what you will get it now in this price bracket. So, but Audi को मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि Volkswagen Group जो actually Audi जिसके अंदर आती है, so after Dieselgate they are not even reviving. So मुझे लगता है कि अब Audi Q3 को थोड़ा सा मेकओवर का जरूरत है। This car needs more technology and especially जो है which is required, that is ADAS, okay, which is most essential because अगर देखोगे इस प्राइस ब्रैकेट पे आपको हर गाड़ी में आपको ADAS मिल जाती है। So this is one thing I personally feel it was missing out somewhere, and of course the interior को थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा fresh लुक देना चाहिए। हालांकि इस गाड़ी का एक वर्जन आ चुका था, that is 2023 में, that is the Audi Q3 Sportsback, which was actually a bold move by Audi. Obviously इस गाड़ी में आपको panoramic sunroof तो नहीं मिलने वाला, you will get small sunroof, but yes अगर आप सनरूफ के शौकीन ना हो तो आप Audi Q3 Sportsback के साथ भी जा सकते हो, which is actually a coupe version and it is looking a bit fresher than Audi Q3. So that's all about this video guys. So if you like my presentation and if you like my video, so please subscribe my channel, that is TBB India, and hit the bell icon so that you will get the earliest notification. And please if you would have any questions about this particular car or any car for that matter or any motorcycle, so please contact with me in my Instagram page, and that is also TBB India. And if you want to connect with me in my Facebook page as well, and that is also TBB India. So that's all about it video guys. So I have to take a sweet alvida from you. So till then, take care, bye bye, have blast, and ride safe, drive safe, and please wear helmet while riding motorcycle, and please wear seat belt while you are driving a car. So that's all. Bye. Take care.